Hello dear students. Today we are going to start new chapter triangles of class 9th. But since this is base of geometry, triangles is there, so you can use this to make your concept strong in order to do any question, whether it is related to 10th, that is especially triangles, or maybe of 9th. So here we will focus on 9th syllabus. So here in triangles, first we will go through the basics, then we will start our exercise. So let's start with the basic term. What is a triangle? As you know, triangle is a closed figure. It has shape like this. It may vary from, you can say, sometime we have different nature, like it is a shape of somewhere equilateral. It may be like this. It may be exactly 90. So it varies, but one thing is common in all triangle. What is that? It is made by 3 intersecting lines. देखिए 3 लाइन से मिलकर बना है. And a triangle has 3 sides always and 3 vertices. So this is the basic definition of triangle. Triangle is formed by 3 intersecting lines having 3 vertices and 3 sides. Now congruent figures. Congruent means exactly same. मतलब जो एक दूसरे को पूरा कवर कर ले, सुपर इम्पोज कर ले, ऐसे फिगर्स को हम कॉन्ग्रेंट फिगर्स बोलते हैं. लाइक I have a square of this size and I want to cover it properly. तो exactly इसी shape का square हमें उसके ऊपर रखना होगा, तभी से exactly हम cover कर पाएंगे. So that means ऐसी figures जो एक दूसरे को पूरे तरीके से cover कर लें, वो कब cover करते हैं? When they have same shape and same size. So in order to be congruent, two figures must have same shape and same size. तो वो क्या होती हैं दोनों figures? Congruent होती हैं. अब ऐसे अगर if I draw a circle here, what will be the congruent figure of this? इसकी congruent figure यही circle होगा, इतनी ही radius का, because it is the only circle that will cover it properly. So congruent figures are those figure which has same shape and same size are called congruent figures. अब हम particularly सारी figures नहीं पढ़ेंगे, हम congruent triangles पढ़ेंगे. So यहीं से डिड्यूस हो सकता है, जैसे सारी फिगर्स कॉन्ग्रेंट हैं, सेम शेप और सेम साइज है, ऐसे ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे. यानी दोज triangles which have same shape and size are called congruent triangles. अब देखिए congruent triangles means if I am drawing a triangle like this, then another triangle will be of the same shape and size to cover it properly, to superimpose it. Superimpose का मतलब होता है exactly उसे cover कर लेना. So congruent triangles are those triangles which have same shape and size are called, that is congruent, as I told you. अब हमें क्या करना है इस चैप्टर में? हमें कॉन्ग्रेंसी शो करनी है, यानी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखाना है. तो हर टाइम हम यही नहीं कर सकते कि हमेशा हम शेप और साइज को लेकर ही आगे बढ़ें, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो कॉन्ग्रेंट विद द हेल्प ऑफ दीज टू पैरामीटर्स. हमें कोई ऐसा ऑल्टरनेट मेथड ढूंढना पड़ेगा तो जो वेरीफाई करा दे कि कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं, यानी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं. शेप और साइज तो है ही, बट हमेशा हम उस पैरामीटर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम एक और सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ मेथड, जिससे हम अपनी फिगर्स को कॉन्ग्रेंट दिखा सकते हैं. तो कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए आपके पास कुछ बेसिक रूल्स होते हैं. देखिए सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए यहाँ कि देखिए अगर दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास, एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, these are somewhere different, so let us take up similar triangle. बिल्कुल एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं. So I have a triangle ABC and PQR. ठीक है, आपको इन्हें कॉन्ग्रेंट दिखाना है, तो आप कहेंगे एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल P, एंगल B शुड बी इक्वल टू एंगल Q, एंगल C शुड बी इक्वल टू एंगल R. ये हो जाएगा कॉन्ग्रेंट? नो, इट इज़ नॉट सफिशेंट. हो सकता है एंगल्स तो सब बराबर हैं, ऐसा भी तो होता है ना बेटे, जब हम साइड की लेंथ वेरी करते हैं, ये साइड बड़ी है और ये हमारे यहाँ छोटी साइड से मिला हुआ ट्राइंगल है, भले ही यहाँ इक्विलेटरल बन रहा है 60 60 60, यहाँ भी 60 60 60 बन रहा है ना,
बट इनके साइज में डिफरेंस है। एंगल्स आर सेम, शेप इज सेम, बट साइज इज डिफरेंट, सो दैट्स वाई दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट। तो सिर्फ एंगल्स का बराबर होना सफिशिएंट नहीं है, साइड का इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है। तो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए कुछ रूल्स तैयार किए गए हैं जिनसे हम डायरेक्ट फिगर्स को यानी स्पेशली ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखा सकते हैं। कॉन्ग्रेंट के लिए जो सिंबल होता है, कॉन्ग्रेंसी के लिए अगर कोई भी कॉन्ग्रेंट दिखानी है फिगर्स यानी ट्राइंगल, तो उसके लिए हम इक्वल का इस्तेमाल करते हैं और सिमिलर साइन का ऊपर। ये सिमिलैरिटी का साइन होता है और इक्वालिटी का साइन है, यानी फिगर की शेप सिमिलर होगी, शेप सिमिलर एंड साइज इक्वल। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्ग्रेंट फिगर्स। यानी अगर कॉन्ग्रेंट होंगी फिगर्स तो आप हमेशा ऐसे यहाँ पर सिंबल लगाएंगे। जैसे मैंने फिगर बनाई है 60 60 60, हेयर ऑल्सो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। देखिए यहाँ शेप भी बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर है, साइज भी बराबर है, यानी लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर है। व्हेन शेप एंड साइज इज एग्जैक्टली सेम तो हम कह सकते हैं ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट हो गया है। तो यानी हम यहाँ साइन लगाते हैं इक्वल एंड सिमिलर। सो आई विल राइट ट्राइंगल, so I can write triangle ABC is congruent to triangle PQR। फिर हम ऐसे लिखते हैं। अब देखिए, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो ज़रूर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर रहे होंगे और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर रही होंगी ना, आमने सामने वाली साइड्स भी बराबर हैं देखिए, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हैं, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। तो अगर आपके पास कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल गिवन है ऑलरेडी, तो इसका मतलब आप उससे क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि जो एंगल सामने एडजस्टमेंट में आ रहे हैं वो बराबर होंगे। देखिए एक इसको करस्पॉन्ड कर रहा है पी को, तो आप इससे कह सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी रहेगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये तो हमारा एंगल्स थे। अब हम साइड्स भी बराबर लिख सकते हैं। कैसे? देखिए ए बी के सामने पी क्यू करस्पॉन्ड कर रही है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। अब ये छह चीज़ें बराबर हैं, तीन एंगल्स तीन साइड। ये कौन से मेथड के तहत बराबर है, यानी कौन सा हमने यहाँ क्राइटेरिया इस्तेमाल किया है, वो क्राइटेरिया होता है CPCT। अब ये क्या है, ये आपको बहुत इस्तेमाल करना है CPCT। सभी क्वेश्चंस में कॉन्ग्रेंसी इस्तेमाल करनी है और CPCT इस्तेमाल करना है। CPCT की फुल फॉर्म होती है कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। यानी जो छह पार्ट्स हैं वो क्या हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही तो हैं। देखिए ए और पी बराबर है, बी एंड क्यू बराबर है, सी एंड आर बराबर है, तो यानी ये सब छः के छः करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं किसके, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं तभी उनके पार्ट्स भी इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बेसिक पढ़ लिया है कि कॉन्ग्रेंसी कैसे डिफाइन होती है, इसमें आप क्या क्या CPCT से बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब रूल्स कौन से हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब रूल्स टू फाइंड कॉन्ग्रेंसी। आप कैसे प्रूव करते हैं कि ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है या नहीं। Now we have 5 special rules to show any two triangles congruent। हम congruent डायरेक्टली किन 5 वो मिनिमम क्वालिफिकेशन कह सकते हैं आप, जैसे आप कहते हैं ना डिग्री मिनिमम है, ये होनी चाहिए मिनिमम क्राइटेरिया एग्जैक्टली। सो वो मिनिमम क्राइटेरिया है, अगर दो ट्राइंगल में वो वेरीफाई हो गया तो यानी आप कॉन्ग्रेंट डायरेक्टली कह सकते हैं, आपको और ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए मिनिमम क्राइटेरिया का मतलब है फर्स्ट क्राइटेरिया इज ट्रिपल एस। ट्रिपल एस मीन्स देखिए एस साइड के लिए रिप्रेजेंट करते हैं हम, एस फॉर साइड एंड फॉर एंगल वी विल राइट कैपिटल ए। ठीक है, सो ट्रिपल एस का मतलब क्या है, साइड साइड साइड। यानी अगर दो ट्राइंगल्स में तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाएं तो ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। फॉर एग्जाम्पल ABCPQR। देखिए 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 है, दिस इज 4 4 5 5। देखिए ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर दैट इज 4 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर दैट इज 5 सेंटीमीटर। देखिए इस करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है तो हम लिख सकते हैं। अब इसका रूल कैसे होता है देखिए लिखने का, इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR
दोनों को कंसिडर करना होता है। ये मैं आपको वर्किंग रूल बता रही हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चंस में अपना आंसर लिखना है, यानी कैसे आप कॉन्ग्रेंसी प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले जो भी दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल प्रूव करने हैं वो कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है। पहले हम ट्रिपल एस का एग्जांपल ले रहे हैं, तो हम ट्रिपल एस वाली कंडीशन हमने लिख दी है। तो आप पहले ट्राइंगल कंसिडर करते हैं कौन से लेने हैं। तो आपने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब जो जो चीज़ें बराबर हैं दोनों की वो आप ध्यान से लिखेंगे। देखिए पहले ए बी सी का आपने नेमिंग दी है, फिर पी क्यू आर। तो लेफ्ट साइड ए बी सी का डाटा आएगा, राइट साइड में पी क्यू आर का डाटा आएगा। ए बी की लेंथ पी क्यू के बराबर है, तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के, एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। ऑल वर गिवन, ये गिवन था हमें। तो क्या ये तीनों क्राइटेरिया ट्रिपल एस के हैं? तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखिए ए बी सी का सीक्वेंस यहाँ पर बहुत मैटर करता है। ए बी के सामने वही लेंथ आएगी जो उसके इक्वल है, तो ए बी पी क्यू के बराबर है, तो आपने पी क्यू लिखा। अब आर अल्फ़ाबेट रह गया, वो डेफिनेटली यहीं आएगा। अगर आप इसको करस्पॉन्ड करके देखें, क्यू आर के सामने बी सी बैठ रहा है, तो देखो क्यू आर और बी सी बराबर है। यानी ये जो सीक्वेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रॉन्ग हो गया तो पूरा आपका जो क्राइटेरिया है वो रॉन्ग हो जाएगा और आपके आगे सब पार्ट्स भी रॉन्ग आएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया है बाई विच रूल, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी criteria. Clear? So now next is side angle side. Side angle side means टू साइड्स रहेंगी और इनके बीच का एंक्लोज्ड एंगल रहेगा। जैसे हमने ये एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ फिगर के ज़रिए। ए बी सी पी क्यू आर, this is 30 degree, this is 30 degree, 4 4 6 6, this is in centimeter, okay, all are in centimeter sides. देखिए एस ए एस कब होता है, जब दो साइड बराबर हो और उनके बीच में एंक्लोज्ड एंगल बराबर हो। देखो 4 इज इक्वल टू 4, 6 इज इक्वल टू 6, और दोनों के बीच का एंक्लोज्ड एंगल ही बराबर है। ऐसा नहीं होगा कि दो साइड तो ये वाली बराबर और एंगल आपको ये वाला बराबर दे दिया है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। वो एंगल इन दोनों साइड के बीच में नहीं एंक्लोज हो रहा है, वो अलग है एंगल, तो उसे इंक्लूड नहीं करना है। तो ये ऐसे ऐसा आप ध्यान रखेंगे, साइड एंगल साइड, दो साइड बराबर हो और उनके बीच में एंगल एंक्लोज्ड एंगल बराबर हो, तो वो एस की क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसमें भी सेम आपको 3 लाइन्स लिखनी है। आप पहले ए बी इज इक्वल टू पी क्यू लिखेंगे, देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ए सी इज इक्वल टू पी आर। तीन हो गए क्राइटेरिया, हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर बाई साइड एंगल साइड। सेम वे यू हैव टू प्रोसीड। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट. We have angle side angle. देखिए एंगल साइड एंगल का क्या मीनिंग बैठ रहा है, दो एंगल्स बराबर हो उनके बीच की इंक्लूडेड साइड, ये साइड इंक्लूडेड है, बाहर की तरफ नहीं होगी, बीच में आएगी दोनों एंगल्स के। तो दो एंगल्स का मतलब है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर ये मैंने ले लिया 45, ये भी 45 हो गया है, ये 90 है और ये भी 90 है बाई चांस, ठीक है। तो देखिए ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो साइड कौन सी होनी चाहिए, बीच की दोनों की या फिर बाहर वाली? इट शुड बी इंक्लूडेड वन, यानी ये बीच में 3 है तो ये भी 3 होनी चाहिए। देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो यानी आपका क्या क्राइटेरिया है, साइड वही हो जो दोनों एंगल्स के बीच में आ रही है। ऐसा ना हो कि दो एंगल्स तो आप ये वाले ले लें, थर्ड साइड आप इन दोनों में से कोई भी ये बना लें। तो यानी दोनों साइड, दोनों एंगल्स के बीच वाली ही साइड आप ले सकते हैं इन ऑर्डर टू शो ASA रूल। फोर्थ रूल इज एंगल साइड। एंगल साइड, यानी एंगल सीक्वेंस में हो और साइड उसके बराबर में हो। तो देखिए कैसे हो सकता है, 45 90 6 सेंटीमीटर, 45
96 सेंटीमीटर। देखिए एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, इसे आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। एंगल एंगल ये वाली साइड भी बराबर हो सकती है, एंगल एंगल ये वाली साइड, ज़रूरी नहीं ये वाली हो, तो आपके पास चॉइस है। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड ऊपर वाली भी हो सकती है, एंगल एंगल साइड नीचे वाली भी हो सकती है। लेकिन अगर बीच में साइड आएगी इन्वॉल्व तो आप उसमें ASA रूल ही लगा सकते हैं, उसे आप AAS नहीं बोल सकते हैं। सो नाउ लास्ट वन इज फिफ्थ वन, RHS rule. R stand for right angle, H for hypotenuse, S for any side। यानी ये स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होती है, ये किसी और ट्राइंगल के लिए रूल नहीं है। तो यानी कभी भी आपको अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल दिए जाएं तो आप ध्यान से देखिएगा कहीं उसमें RHS तो नहीं है, यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी RHS लगती है। सो आपने ABC एक ट्राइंगल लिया, दिस इज अदर ट्राइंगल PQR, जिसमें एक एंगल 90 है, वन साइड इज 3 एंड लॉन्गेस्ट साइड इज 6। देखिए राइट एंगल बराबर होना चाहिए, देखो 90 90 बराबर है ऑलरेडी। हाइपोटेनियस AC शुड बी इक्वल टू PR, 6 6 है। वन साइड, वो साइड ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है, इसमें बेस बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो RHS के लिए आपके क्या होना चाहिए, कोई भी एक साइड बराबर आपस में, हाइपोटेनियस बराबर और 90 एंगल बराबर। तो हम लिख सकते हैं हैंस ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, देखिए B के सामने Q आना चाहिए और AC के सामने PR आना चाहिए। सो PQR by RHS rule. So now this way we discuss all basics of congruency rule you can say from chapter triangles। तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से वीडियो को समझिएगा और इन कॉन्सेप्ट्स को आप नोट डाउन कीजिएगा अपनी कॉपीज़ में, ठीक है। तो जब आप इन कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, अच्छे से समझेंगे, देन यू विल बी मोर क्लियर रिगार्डिंग दिस चैप्टर। तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें बेसिकली करना क्या है इस चैप्टर में, ट्राइंगल्स में होता क्या है, कि कैसे हम कॉन्ग्रुएंसी रूल्स का इस्तेमाल करते हैं और कैसे उन्हें अपने क्वेश्चन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट प्रॉपर आइडिया ऑफ दिस टॉपिक, एंड ऑन दिस बेसिस नाउ वी विल ट्राई सम क्वेश्चंस which are given in your NCERT book in our next video, so don't forget to watch that one to get complete knowledge of the chapter। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरे चैप्टर की कम्प्लीटली नॉलेज हो जाए कि आपको कैसे क्वेश्चंस करने होते हैं। थैंक यू।